Hello everybody, how are you all? So welcome to iScholar. So in today's video, what are we going to do? We are going to discuss all the questions of H.C. Verma from the Go Slow chart, Okay, so let's get started. As you know, we have already discussed in every video, we are going to discuss 10 questions. So, in order to get the whole of this chapter, just watch the complete playlist so that you will get a solution for each and every chapter. Okay, so let's get started. Okay, so the first question, it says that there's a field, it's given, the electric field is uniform and electric field is given in such a way. Okay, electric field is given to you. That is 3 by 5 I naught. Let me just write the values. 3 by 5 E naught I cap plus 4 by 5 E naught J cap. So electric field is given. E naught value is also provided. Find the flux through a rectangular surface. Area is mentioned parallel to YZ plane. Very simple question. How to deal? We know that if electric field is uniform, simple. The Gauss law says that flux value, from the flux value is E vector dot A vector. If electric field is uniform. So I said E vector dot E vector. Now area vector is not given. How to get to it? Only area value is given. Okay, let us calculate it. See, area is 0.2 meter square parallel to YZ plane. Students, understand this. Let's suppose if I say this is Y axis, this is the Z axis. If I say my area is capped over here, this is the area which is capped. Now what is the area vector? As simple as that, a perpendicular vector to it. Area vector is always perpendicular. So taking the area vector would be like this, perpendicularly coming out. So we'll say the area vector would be just, I'm writing it over here, it would be magnitude 0.2 into the area vector which would be along X. So I'm taking it as to be I cap. Why? The area vector is perpendicularly outwards, right? So as simple as that, electric field we know, area vector we know, we are just going to do the dot product and that is it. Let's do it. Electric field will be, I'm taking E common, this will become 3 by 5 of I cap plus 4 by 5 of J cap area. Now coming to the area part, this is 0.2 of parallel to this. I'm writing 0.2 of I cap. Am I clear with this? So just multiply them. You'll get the dot product. Only I component, this component will reside. That is when you'll multiply the I component with this I1. So it will become as, the total flux at the end will become as 3 by 5 into, I'm multiplying all the X coordinates. Because I dot J becomes 0. We have already learned this. So that would be 3 by 5 E naught into 0.2. E naught value is also given. Let me take it as 3 by 5 into 2 into 10 ki power 3 into 0.2. So coming from here, we'll just calculate. This value would be, it would be something 1.2 divided by 5 into 10 ki power 3. So the total flux we have got. And what is the SI unit to flux? How can you write the flux? So that is written in Weber. So you'll write this into Weber. Okay. I hope students this question was easy and you all people got it. Okay. So coming to the next question, it says that a charge is uniformly distributed over the road. अच्छा, हमारे पास एक चार्ज है जिसका लेंथ है L. इसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक हाइपोथेटिकल स्टूडेंट्स मींस इमेजिनरी
क्यूब इमेजिन करो जिसके एज है आपके पास L, सेंटर ऑफ क्यूब एट वन एंड ऑफ द रो। ओके, यानी ये बोल रहा है कि एक ऐसा इमेजिनरी क्यूब इमेजिन करो जिसका सेंटर है एट वन एंड ऑफ द रोड। ओके, तो यानी मैंने माना कि ये मेरे पास एक ऐसा इमेजिनरी क्यूब है, मैं यहाँ पे क्यूब बना रही। क्यूब का सेंटर इस तरीके से लेंगे कि वो इस रोड के बिल्कुल सेंटर मोस्ट पे है। सो इफ दिस इज अ क्यूब, विल टेक इट एज, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे इस तरीके से, और ये वैल्यूज आ जाएंगी, just make the cube again, it got a bit shabby, just a second, yeah. So cube इस तरीके से बनाना है कि रोड का एक एंड क्यूब के सेंटर पे आए। So making the cube first face, and the cube goes on like this. Again, I just messed up. Okay, so this is the cube. Now, what is asked? Ask the total flux through the entire surface of the cube. Okay, so I'll say that the flux goes on as, from the Gauss law we can say, total charge enclosed in the Gaussian surface divided by epsilon naught. Now, what is the total charge enclosed in the Gaussian surface? We want to calculate flux from this cube. तो क्यूब में से कितना चार्ज अंदर है, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? सो यू विल से द क्यूब के अंदर आधी रोड आ रही है। Clearly I can say that this cube just have half of the road. तो यानी जितना चार्ज आधी रोड में है उतना ही क्यूब के अंदर आएगा। I can say that जितना चार्ज आधी रोड में है उतना ही क्यूब में आए। So I'm writing the total flux will be total charge enclosed, which will be half of the road. अब पूरे के पास क्यू है, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आधे पे कितना होगा? As simple as that, it will be Q by 2 epsilon naught. Am I clear with this? बहुत सिंपल था, हमने सीधा सीधा ज्योमेट्री से निकालने की कोशिश की। Coming to the next question, show that there is no net charge in a region where electric field is uniform. Okay, so this is something we need to prove. It's a good question, you'll enjoy doing. See, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए आई एम शोइंग दीज इक्वल पैरेलल लाइंस। ऐसे इक्वल पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। इनका क्या मतलब है? इट मींस दैट सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, दे आर इक्वली स्पेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हमने यहाँ पे माना कि अब हमें दिखाना है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वहां पे देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, तो यहां से इन ऑर्डर टू प्रूव आई एम टेकिंग द क्यूब वन एग्जांपल। व्हाई? क्यूब बहुत स्टैंडर्ड केस है, इट कम्स इन वेरियस एग्जाम्स, सो इट्स बेटर इफ यू लर्न दैट। ओके, सो हमने क्यूब इमेजिन करते हैं, यहाँ पे हमने माना कि ये पूरा बॉडी है और एक क्यूब यानी एक बॉडी हमारे पास विच we took it as cube। अब देखो ये क्यूब बना, जब हमने इसका क्यूब बना दिया, हमने बोला इस क्यूब से टोटल फ्लक्स पता लगाते हैं। क्यों? मुझे प्रूव करना है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर यूनिफॉर्म में कोई भी एक बॉडी रखी हुई है तो उस पे टोटल चार्ज उसके अंदर जीरो, ये नेट चार्ज जीरो। लेट्स प्रूव दिस। तो उसके लिए हमने बोला फ्लक्स वैल्यू विल बिकम एज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आवर टारगेट इज हम पता लगाएंगे फ्लक्स, फ्लक्स आगे अपना काम करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी वंस we'll calculate flux and from the flux we'll calculate total charge enclosed. So let's see, फ्लक्स पता लगाते हैं। as simple as that, from Gauss law हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वी कैन यूज E वेक्टर डॉट A वेक्टर।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, we can write the formula E dot A vector. Now we'll understand, we'll calculate the flux of the whole cube. पूरे क्यूब का कैलकुलेट करते हैं. So I'll take it as, देखो कहाँ कहाँ से फ्लक्स आएगा. I'm doing it this. I hope the ink is visible. पहला मैंने बोला ये वाली एक फेस है. इस फेस की वजह से एरिया वेक्टर ऐसे, which is parallel to electric field. Okay. Now, each cube, in one cube, we have 6 faces. कैसे? I can also prove it like this. Let's suppose this is it's a cuboid, but just to make you understand. देखो, एक face will be this perpendicular to this. एक face हो जाएगा नीचे वाला, ऐसे इसके perpendicular. एक face बन जाएगा this one. And one face would be this one. Similarly, one face would be this. I'm showing it by a cuboid, but you can also take some cube or something अगर आपके पास है. But just for understanding. And एक face बन जाएगा इसके पास. तो you have 6 faces in a cube or cuboid. 6 face हैं, तो 6 की वजह से we'll calculate E dot A. पहला वाला का एरिया वेक्टर we drew. Second, अब ये देखो एरिया वेक्टर कैसे बना, ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर टू द बॉट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इसके लिए कैसे होगा, अगेन गोइंग बैक लाइक दिस. इसके लिए कैसे होगा, परपेंडिकुलरली डाउन. इस फेस के लिए कैसे होगा, यूल से जो बाहर वाला फेस है, जैसे क्यूब है इस तरीके से, तो इमेजिन जो ये वाला फेस है दिस, इसके लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स. बट I cannot make it, so I'm making this perpendicularly outwards in 2D like this. देखो अभी मैं इसे ऐसे तो नहीं दिखा सकते, so I'm showing it like this. It means perpendicularly outwards only. एक एरिया वेक्टर ऐसे और एक एरिया वेक्टर पीछे वाले की वजह से ऐसे. अब आप एक चीज देखेंगे कि ये जो क्यूब है इसमें 4 फेसेस ऐसे बन जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे. आप देखो दिस E वेक्टर A वेक्टर इज ओके, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में पैरेलली. इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस वे व्हाइल एरिया वेक्टर इज गोइंग अपोजिट. इट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे दे आर अपोजिट. What about the rest? बाकी सब में they are perpendicular. The total E dot A would be 0. देखो कैसे, ऊपर वाला एरिया it is like this in the Y and the electric field is like this. You can see perpendicular. What about this? This is in Z and this is in X. Electric field X में है, area vector Z में है. Again perpendicular 0. What about this? Area vector electric field X, area vector along Z 0. तो इसकी वजह से भी 0. क्यों? Because we know that अगर E dot A वेक्टर में एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का है, तो this will become EA cos 90, which will become 0. Am I clear? अगेन इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0. तो what is left? So the left part is just these two. Am I clear? What about the total flux I'm writing? Total flux because of this, दोनों same direction. Cos angle cos theta 0. Cos theta 0, so I can write E dot A cos 0, which will become EA. Clear? What about because of the back one? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, एरिया वेक्टर पीछे, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल. So can I say that it will be because of this, it will become as EA cos of 180. Students, cos of 180 is -1. Cos की ये values पता होनी चाहिए, right? So we'll say to total flux will be EA minus EA and the total flux comes out to be 0. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल फ्लक्स आया 0.
तो टोटल फ्लक्स मींस दैट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका तो यही मतलब है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड भी क्या आ गया, 0। Am I clear? Okay. So coming to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बहुत ही इजीली हम ये कर पाएंगे, क्यों? वी हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन ऐसे, चार्ज कंटेन्ड बाय द क्यूबिकल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक क्यूब ही मेंशन्ड है, आपको बॉडीज के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू गिवन। सो वी विल कैलकुलेट लाइक दिस, x y z। सबसे पहले तो क्यूब ड्रॉ करते हैं, विल ड्रॉ द क्यूब। इट इज x0, इस तरीके से क्यूब बनेगा, 0 से शुरू कर रहा है, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड दे विल गो टिल a। Now the coordinate says that this point would be AA, or you can understand this is made in this plane। अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे a कोऑर्डिनेट है, अगर हम y की बात करें यहाँ पे a कोऑर्डिनेट है। If I talk for z, this is a coordinate। If I talk for this point, this is a0 0, बाकी सारे टर्म 0। If I talk for this point along on the y, यहाँ पे बन जाएगा x0 y a है z0। अगर हम बात करें z की तो यहाँ पे बन जाएगा 0 0 a। Am I clear with this? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये a है तो the area of each part would be a square only। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है which is going along the x axis। x axis I कैप के along वेरी, लेकिन पे अटेंशन, इधर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। Am I clear? Now I am drawing the electric field. For electric field, I take another pen's ink. Let's suppose it is blue. So now I am drawing electric field which is along the x, ऐसे along the x है। I hope this ink is visible to you all. Okay. As we discussed in the last question, उससे इतना फायदा होने वाला है। अब एक चीज हमें क्लियर है, if we have a cube question, तो क्यूब के सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे फेसेस हैं जहां से फ्लक्स आएगा, है ना? बाकी सब 0। सिर्फ 2 फेसेस हैं जहां से आएगा, दैट इज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एरिया वेक्टर, जो मैंने ये वाला लिखा, एक तो ये वाला फेस, मैं इसको नाम दे रही हूं as 1, और दूसरा फ्लक्स जो देगा वो होगा बिकॉज ऑफ दिस बैक पार्ट, यानी वो फेस जिसका एरिया वेक्टर माइनस में जा रहा है इस तरह। बस हमारे पास 2 ऐसे फेसेस हैं जिसकी वजह से फ्लक्स आएगा, बाकी सबकी वजह से द फ्लक्स वुड बी 0। व्हाई? बिकॉज एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। अभी वी जस्ट सो आई एम राइटिंग, ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्यूब का क्वेश्चन तो फटाफट कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस एरिया का एरिया वेक्टर कम्स इन दैट वे, ओनली राइट द फ्लक्स फॉर दैट। यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक उल्टा एक पॉजिटिव नेगेटिव। सो आई एम राइटिंग द टोटल फ्लक्स वैल्यू विल बी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे आ आएगी। बिकॉज ऑफ दिस आई एम राइटिंग इट एज फ्लक्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा, पॉजिटिव। सो आई एम राइटिंग बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, sorry, so electric field here will be given as E naught x by L I कैप। तो मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर भी लिखा। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट which is formed by the side AA, you will say that is A square, and I am writing cos 0। Why? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, सेम डायरेक्शन। cos 0 that is 1, so I am writing the electric field will be E naught L। L की वैल्यू गिवन है। What is this x?
x मतलब आपका कोऑर्डिनेट क्या है, योर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस प्लेन which you can clearly see यहाँ पे this is x is equals to a. We are talking for a, so I'm writing the x coordinate would be just a. Am I clear? Into the area vector which is a square into cos 0 is 1. From here I'll write e naught a का cube by l, which is positive. अब दूसरा फ्लक्स जो आएगा वो आएगा because of this and it is in the negative direction. Am I clear with this? So this will be in the negative. I'll write the phi 2 value. So electric field यहाँ पे कितना होगा? E naught x by L. Tell me students, what is this x? At origin. ये जो प्लेन है, ये जो आपके पास एरिया है, that is at origin. Origin मतलब x coordinate is 0. And if x coordinate is 0, you can simply write x is 0 over here. x अगर 0 है तो आप सीधा सीधा this coordinate will become 0, e naught 0 by l into a square, यानी तो पूरा टर्म ही 0 हो गया. So what is the total flux? Total flux की वैल्यू आ जाएगी only this, that is e naught a cube by l. I'll write the total flux value, either I'll put the value, so that will become total flux e naught value, just the calculation part now, 5 into 10 की power 3 into a cube. E value is 1 centimeter, so I'm taking 1, 1, 1, that is 1 only, and multiplying, dividing by 100 cube. Why? The length is in centimeter. Divided by L, L is also 2 centimeters, so 2 by 100. So this will just cancel out, and here we are having 2.5. This is 2.5 into 10 की power 3 divided by is 100. So the total charge, total flux you have got. क्वेश्चन में पूछा गया टोटल चार्ज क्या है, आप तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल फ्लक्स इज जस्ट टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स वी कैलकुलेटेड, एंड नाउ आई होप यू कैन डू दिस, राइट? Coming to the next question, it says that a charge is placed at the center of the cube. Find the flux of electric field through the 6 surfaces of the cube. So the question says that find the flux, charge is placed at center of cube. Again let me draw the cube. देखो cube वाला बहुत standard case है, बहुत बार आता है. So again I just drew this cube. Find the flux of the electric field through the 6 surfaces of the cube. अच्छा, charge is placed at center. बहुत simple and बहुत standard question. It gives you a lot of learning. See, it is a closed body. I said total flux of the body, total flux from the cube will be just total charge which is inside divided by epsilon naught. Total flux जितना होगा is just total charge by epsilon naught. Okay. ये तो आया टोटल फ्लक्स, यानी हर फेज से फ्लक्स आया. बट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम द 6 सरफेस, यानी आप इंडिविजुअल सरफेस से कितना आएगा. सो आई एम सेइंग टोटल फ्लक्स आया क्यूब एक्सल, जो कि मिलके बना है टोटल फ्लक्स, क्योंकि जो पूरा बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ 6 फेसेस. सो आई सेड 6 फेस. सो आई एम सेइंग टोटल फ्लक्स जो है दैट इज एक्चुअली, स्टूडेंट्स कैन आई राइट, ये मिलके बना है 6 फेसेस से. तो आई एम राइटिंग 6 इनटू फ्लक्स फ्रॉम द 1 फेस. आपके पास एक क्यूब है, उसके अंदर 6 फेसेस हैं, तो टोटल फ्लक्स तो बिकॉज ऑफ 6. सो दैट इज व्हाट आई रोट, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे फ्लक्स फ्रॉम 1 फेस विल बी गॉट एज Q, the total charge by 6 epsilon naught. Am I clear? So that is it for this question. Coming on next. Okay.
So the next question says that charge is placed at a distance a by 2. Okay, find the flux of electric field, find the flux through the square surface. Okay, देखो कैसे करना है. आपके पास एक क्यूब, एक चार्ज है, वो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे. अगर हमें गोश लॉ यूज करना है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आपके पास जो भी चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है, तो एक सिमेट्रिकल बॉडी से ट्राई टू कवर इट. फॉर एग्जाम्पल आई से दिस इज द चार्ज, आप सिमेट्रिकली ट्राई करें यू कवर द होल बॉडी. यानी अगर मेरे पास ये चार्ज है तो हमारा टारगेट यही रहेगा, हम इस चार्ज को सिमेट्रिकली कवर कर दें. कैसे कर सकते हैं? इफ आई हैव दिस चार्ज, if this is one plate, just imagine this one plate over here. You have this charge, this one plate below it, you need to cover it. आप इस चार्ज को सिमेट्रिकली कैसे कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस प्लेट? Best way, the only way it is hitting your mind, I know, that's you will say one face here, one area here. One area here, one area. That is what I'm saying. I'm trying to cover it by a cube. यानी बहुत सिमेट्रिकली, बहुत आराम से I can do it if I say मैं ऊपर भी एक प्लेट एरिया लगा दूं, नीचे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, तो क्या ये क्यूब ही नहीं बन जाएगा? कैन आई से ये चार्ज यहाँ पे ऐसे है विच इज एट अ डिस्टेंस a by 2 और इन दोनों का एरिया a है, दिस इज a, दिस इज a. कैन आई से दैट जो आपको उधर येलो लाइन में दिख वाइट, दिस फिगर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दिस. आई हैव जस्ट कवर्ड दिस चार्ज सिमेट्रिक. नाउ क्या क्वेश्चन है, अब पता लगाना है इससे फ्लक्स. वेरी सिंपल, यू विल से ये तो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, टोटल कितना होगा? तो आप कैसे बोलोगे? इट इज एज सिंपल एज दैट, विल से द टोटल फ्लक्स इज टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमें तो सिर्फ एक फेज से चाहिए, तो क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली द फ्लक्स फ्रॉम वन फेज विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. Am I clear with this? See, very simple. Okay, coming on next. Next says that आपको पूरा फ्लक्स पता लगाना है from a spherical surface. अगर it's given charge is at the center, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है सेंटर पे, और एक और चार्ज है जो कि बाहर रखा हुआ है. ओके, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? We'll say that, देखो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें से मुझे पता लगाना है टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स फॉर्मूला ओनली सेज दैट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. जो टोटल चार्ज अंदर आ गया. अब अगर मैं इसकी बात करूं, सो द ओनली चार्ज विच इज इनसाइड इज जस्ट दिस पॉजिटिव वन. आप फ्लक्स अगर इसके लिए फ्लक्स लिख रहे हैं तो ये वाले चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लक्स फ्रॉम दिस स्फीयर, सो दिस चार्ज विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये बाहर का चार्ज है, इट इज नॉट इंक्लूसिव. कल से द टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जो चार्ज अंदर है, अंदर कौन सा वाला पार्ट है? दैट इज दिस पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू है 10 की पावर -7 बाय एप्सिलॉन नॉट. I hope this question is clear to everybody. Okay, again similar pattern पे क्वेश्चन है. चार्ज सेंटर में रखा हुआ एक इमेजिनरी होलो स्फीयर. सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स का यूज करो एंड टेल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगाना है फ्रॉम दिस. एज सिंपल एज दैट. अभी मैंने बताया था कोई भी चार्ज हो, डू नॉट लीव इट लाइक दिस, ऐसे खुला मत छोड़ो. Always try to cover the body, cover the charge by a symmetrical body surface you can choose. So I took, if this is my charge, so मैं इस चार्ज को symmetrically ऐसे cover कर रही हूँ, ऐसे इस तरीके से. What I'm doing, अगर just imagine आपके पास एक आधी इस कटोरी like this, there's a bowl, and you want to cover it completely. So the only way is आप उस ऊपर भी कटोरी लगा दो. So the things become, नीचे भी कटोरी है, ऊपर भी कटोरी, इस तरीके से. So I'm writing, if this is the total charge here,
इसको कवर करना है तो सिंपली ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स विल बी ऊपर वाले पार्ट की वजह से और नीचे वाले पार्ट आई एम राइटिंग डाउन इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कितनी लाइंस आ रही हैं, दैट विल बी जस्ट गिवन बाय ऊपर वाला फ्लक्स प्लस नीचे वाला इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। लेट मी राइट नाउ, सिंस दे बोथ आर आइडेंटिकल आई एम राइटिंग दिस वे, 2 into flux of down, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम जैसे हैं, इज इक्वल्स टू 5। So what is the flux because of the down part? You will say that is Q by flux by 2. And what is the total flux now, students? So I am writing total flux कितना हो जाएगा? Total charge enclosed, that is Q divided by epsilon naught into 2. So the total answer is Q by 2 epsilon naught. नीचे वाले से Q by 2, ऊपर वाले से भी Q by 2 epsilon naught. Coming on next, a spherical volume, uniformly distributed charge, density is given to you. Density इस तरीके से मेंशन है 2 into 10 की पावर -4 कूलम मीटर क्यूब. Find the electric field at a point inside the volume. Okay. तो आपके पास एक स्पेरिकल बॉडी है, आपको यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो आपके पास डेंसिटी इज मेंशन, आपको आर भी मेंशन कर दिया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. आपको पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर. सो व्हाट विल डू, विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू स्पेरिकल बॉडी की वजह से क्या था, k क्यूब बाय आर स्क्वायर. आप कहां तक जा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, यानी इतने पार्ट में, लेट्स सपोज अगर मैं इतने पार्ट में भी कैलकुलेट कर रही हूँ, टोटल चार्ज क्या होगा. सो आई एम राइटिंग टोटल चार्ज, हियर आई एम राइटिंग विल बिकम रो इज टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम. सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. That is, we just calculated the total charge will become density 2 into 10 की power -4 into the volume 4 by 3 pi r cube, that is 4 by 100. A bit lengthy calculations. 4 by 100 into 4 by 100. चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत इजीली निकाल लेंगे, दैट इज k cube by r square. So just I am putting the values. Electric field बन जाएगा k will be 9 into 10 की power 9. Charge will be given as 2 into 10 की power -4 into this quantity, which would be 16 into 16 into 3.14 divided by, that would be 3 into 100 into 100 into 100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर क्या होगा, यानी आप कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है. तो आर मुझे पता लगाना 4 सेंटीमीटर में, सो आई जस्ट रोड 4 by 100 into 4 by 100. Now students, this will be your homework. You will be doing this and you will write the answer in the chat box. Okay, you will write the answer in the comments. Okay, so the last question of this video. Next, from the next question, that is from the next 11th to 20, we'll discuss in the next video. So it says that you have a gold nucleus, Z आपको given है, atomic number. About this, radius given है, assume positive charge is uniformly distributed. Find the electric field at the surface. As simple as that. कितना हो जाएगा, सरफेस पे k cube by r square. What is r? आप कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, सरफेस पे. तो r क्या होगा, रेडियस ऑफ सरफेस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर. चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज 79 एटॉमिक नंबर है, यानी कितना है, 79 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 79 इंटू ई. ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज.
यानी 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज द टोटल चार्ज ऑन दिस। तो बस Q टोटल चार्ज जितना भी इस पूरी बॉडी पे है आर स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, तो टोटल चार्ज वुड बी ZE divided by the radius. Radius is mentioned. Am I clear? So you will just place this. Okay, the first part was very simple. Coming to the next. अब बोल रहा है कि आपको पता लगाना है मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस, यानी आपको पता लगाना है यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर मानो पूरी बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला। ओके, फॉर्मूला विल बी यूजिंग E इज इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या होगा, चार्ज जो इतने पार्ट में आया है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आई एम राइटिंग टोटल चार्ज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू छोटे से पार्ट पे जो चार्ज हमें पता लगाना है Q डैश डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, सो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। एम आई क्लियर? आप यहां से इजीली Q डैश की वैल्यू जस्ट पुट इट ओवर हियर, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी K, चार्ज जो 4 सेंटीमीटर तक अंदर है, तो बस यहां से मैंने 4/3 सब कैंसिल, Q डैश इस छोटे से चार्ज की वैल्यू वुड बी टोटल चार्ज बाय द टोटल सरफेस आर क्यूब इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, यानी आप जहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So the formula becomes as KQR by RQ. Everything is mentioned. K is 9 into 10 की power 9. Charge we know ZE, total charge. Small r given 4 centimeter. Capital R given 7 into 10 की power minus 15. Okay, so you need to calculate electric field at the middle point of radius. यानी 7 into 10 की power minus 15 by 2. Okay, so I hope students you found the video lecture easy and you are able to solve all the questions. We'll meet you in the next video where we'll do the next 10 question for this. Okay, thank you all.